Give a big clap. Respected owners of the school, principals, my beloved parents, and so many children that I can see here. It's a great day to celebrate Beechwood Teachers' Day. Not Beechwood, Teachers' Day. The reason is teachers are the foundations that you need, all of us need to grow with teachers. We need teachers more than ever today because there is so much information lying around and we have to find out what is right for us. So today teachers' role is very crucial, not only in terms of dissemination of knowledge, but also to show you the right path, to be the guide, philosopher, and most importantly, friend. Thank you so much. अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रिंसिपल ऑफ डॉन बॉस्को Sir, and management of Beechwood School, please sir come on the stage. Mr. Soman sir and Mr. Arpan sir, please sir. It's a humble request.
Give a big clap. सर तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सर प्लीज दो सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजन सर को और उनकी टीम को। आपने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ दिया। आप आगे बढ़ें, बच्चों की सेवा जैसे आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ समाज की सेवा हो रही है, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। And now, please welcome the English Guru of Pukhda Adarsh Hindi High School, and with a charming personality, Mr. Saibal Sen Gupta and Mr. Intisham Ahmed. Please, sir, come on the stage. Please give a big clap. Sir, please say something. Good morning to the dignitaries sitting right in the front, my dear students, and the hosts on the stage, Sanket and Akansha. You are doing a very fine job. And I would like to extend my thanks and gratitude to Rajan sir, who has been a student of ours, both of us, for welcoming us here on the occasion of Teachers' Day. And we hope to be thoroughly entertained by all the programs and all the events that you people are going to stage over here. The children who will be doing the different kinds of programs, the events. And on this occasion of Teachers' Day, I would only like to say that Sir has in short, Sir has very brilliantly said that what a teacher means to a student, what is the importance and significance of a teacher to a student. Without repeating it, I would just like to say that yes, you people need a teacher in your life. Right? And when you are born, your parents are the first teachers. And after your parents, when you come to school, your teachers are there. And the teachers not only give you knowledge and information about the subject, but they teach you certain values and ideals that actually
help in building you as an individual. That is very important, that you carry those values, you carry those ideals forward, because after all, education is not just making an academic career or a professional career, but education is more about building a character. We should, as teachers, it is our first and foremost duty to build or to emphasize a character building education which can make the student a person with a good character where he can be useful to the society, he can contribute something to the society and to the country. Then he will think, or all of us will, as teachers, will think that yes, we have been successful because the students that we have prepared, we have imparted certain values in them which have enabled them or helped them to contribute to the society at large and to the nation. Thank you very much for inviting me. Thank you. I feel really honored to be here as a part of this. And I can see so many students over here who I'm teaching right now and who have been my tout. And those who are hosting, anchoring this event, Anu, Akansha and Sanket, they have been bright students. And I really thank Rajan, who has been my ex-student also, for hosting such a grand event to honor teachers. And most of all, you have to see this happens in society, that the students who pass out sometimes neglect teachers. If someone has taught even a one word, he or she is a teacher for their entire life. And you have to pay respect to those teachers. And you have a role to play for society also. And you have to inculcate good moral values also yourself. And I must emphasize over here that there are not only teachers who can teach you, you can learn lessons from everything around you. Even life has a great lesson to teach. You can find life to be the greatest teacher in your life. Life has so many things to teach you. So please pay attention to everything that happens in your life, and it has a great part to teach you. So finally, I also once again I thank Rajan. He deserves students to be hosting such a grand event. Thank you very much. Thank you, sir. न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर. Now I would like to call the director of the English World, Mr. Rajan sir, and the teachers of the English World, Miss Neha and Miss Nisu. Please come on the stage. Give a big clap.
Please give a big clap. मैं सभी टीचर्स को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं स्टेज पे, जो बहुत ही जरूरी है, वो केक सेरेमनी। प्लीज सर, ऑल दी give a big clap. Hello, respected directors, principals, and our honorable teachers. As we know that Teacher Day is celebrating every year on 5th September. But today is 22nd September and we are celebrating Teachers Day because of the lacking of time. और मैं सभी टीचरों को थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया और इम्पोर्टेंस दिया। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और आप सभी को बोलना चाहूँगा विद अ बिग क्लैप अगेन ऑनर आवर रिस्पेक्टेड टीचर्स। और इन सभी टीचरों की बोलना चाहूँगा यूं ही सर हंसते रहे हमेशा, ये हंसी बहुत ही प्यारी है। हंसते रहे हमेशा, ये हंसी बहुत ही प्यारी है। मुस्कान जो बिखरी है इन ओठों में, उसी में तो जिंदगी हमारी है। और इसी मुस्कान को बरकरार रखने के लिए आप सभी को प्रॉमिस करना है कि आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छा करना है, बिकॉज वो मुस्कान आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। राइट? ओके, तो प्रॉमिस रहा तो ओके, थैंक्स अ लॉट। Now I would like to request to Mr. Anup sir. सर यहाँ देखिए, Thank you sir. Starting in front of you, that is welcome dance. Please come on the stage. और बच्चे तो छोटे हैं और सभी बच्चों के लिए बस मैं एक छोटी सी बात बोल के स्टेज से नीचे उतर जाऊंगा। एंड द स्टेटमेंट इज जलजला है जुनूं में इनके, जलजला है जुनूं में इनके, लॉ में वो ललकार है। इसी तरीके से जो परफॉर्मेंस लगातार देते चले द इंग्लिश वर्ल्ड स्टूडेंट्स, उन्हीं का नाम है। थैंक यू। है ना, डिले हो जाती है प्रोग्राम में।
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जितने रातों से जंग जीती है दोस्तों, जिसने रातों से जंग जीती है दोस्तों, सूर्य बनकर वही निकलता है। अब ये तो वेलकम डांस था थोड़े बड़े बच्चों का, और अब हो जाए थोड़े छोटे बच्चों का वेलकम डांस, जो बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो प्लीज वेलकम डीएवी एंड टीम of class 5. Give a big clap.
Please, all of the members. नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया की डर से अपनी फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। अब मैं सिमरन पंडित से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके अपनी स्पीच दे। Please put. Good morning to the respected teachers and all my dear friends. As we all know that we are here to celebrate Teachers Day today. Myself, Simran Pandit, studying class 8, would like to speak on the occasion of Teachers Day. But first of all, I would like to thank my all teachers to offer me such a great opportunity to speak on the occasion of Teachers Day. The title of my speech is Why Teachers Are So Important in Our Life. In India, Teachers Day is celebrated by the students on 5th September every year. It is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. His birth date is being celebrated as Teachers Day. Every year from the time when he is like an occasion and opportunity to pay tribute and gratitude to their teacher for their selfish and precious efforts in shaping the future. They are the reason to enrich of all education system in the country and proceed it continuously without getting tired. I always would be grateful to my all teachers in my life. Thank you. ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक चीज से कोई सिकंदर नहीं बनता। Now, please welcome Tamanna and team of class 12 for their dance performance. Please put your hand together. ए छोकरा ताड़ा, रेडी स्टेज के पीछे। मैं तेरी खतर आई सू तेरे बिना सारा चंडीगढ़ सुनना सुनना लगे। Remixed by Gurmeet Nikana. Gurmeet. DJ Gurmeet.
DJ Gurmeet. DJ परफॉर्मेंस। इसके बाद और एक डांस होने वाला है और उसके बाद एक ड्रामा दिखाया जाएगा यहाँ पे, जो वो ड्रामा है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड डॉटर। फादर एंड डॉटर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए उस पे एक ड्रामा दिखाया जाएगा। तो मैं पूरे उस ड्रामा की टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बैक स्टेज जा करके सब टीम रेडी हो जाए। और मैं बुलाना चाहूंगा स्नेहा एंड टीम फॉर देयर डांस ऑन जोगाड़ा तारा। प्लीज गिव अ बिग हैंड। Then you can let headsets work with your phone. चलिए अब तो डांस हो गया, अब ड्रामा की बारी है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। Prakash and team of class 12 for drama on daughter relationship between daughter and father. Please put your hand together. वेलकम एवरीवन। अब आप लोगों के बड़े होने तक के सफर को दिखाया जाएगा और उस सफर में एक पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। फर्स्ट सीन में बेटी का जन्म और बेटी के जन्म से पिता की खुशी दर्शाई जा रही है, कुछ इस अंदाज में। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। नन्ही परी जैसी बिटिया मेरी, खुश तो हमेशा रहे। सिपाही रिश्ता की
सरगम कहे, नन्ही परी जैसे बिटिया मेरी, खुश तो हमेशा रहे। झम झम जो करती वो नन्ही सिपाही, रिश्तों की सरगम कहे, चहकाए आंगन को जैसे कोयल के कोना, रिश्ता है जो तेरा मेरा। चिंता न पल का पता, होते हैं जब साथ बेटी पिता, रिश्ता ये दुनिया में सबसे जुदा, बेटी पिता। चंचल से नैनों की प्यारी चमक तेरी, हर पल सलामत रहे। नटखट हंसी करती फूलों की बारिश, मुझको भिगाती रहे। चंचल से नैनों की प्यारी चमक तेरी, हर पल सलामत रहे। हंसी करती फूलों की बारिश, मुझको भिगाती रहे। महकाए तेरे होने से घर का हर एक कोना, रिश्ता है जो ना तेरा मेरा। पूजा बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। पूजा पूजा, तुम सुनती क्यों नहीं हो? कितनी देर से बुला रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया लड़की का। जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो स्कूल जाने के पहले सारे काम कर लिया करती। बच्ची स्कूल अकेले जा रही है और रास्ते में आवारा लड़के की बदमाशी। अबे राजवा लड़की फंसा ली से। अबे वो देख तेरी बजाय आ रही है। अबे ज्यादा बकवास नहीं करे, बजाय में तेरी मेरी तो दिल गिरानी है। अबे शक्ल देखा आपने? तुमसे रोटियां नहीं पड़ती चले। अरे यार लड़के शक्ल पे नहीं स्टाइल पे मरती है। अब तो अपनी स्टाइल। ओ मैडम सुनिए ना, जल्दी में देख लीजिए, हम इतने बुरे भी नहीं है। और सारी बातें अपने दोस्त को कहती है। नजारा आपके सामने। पता है आज वो लड़का बिल्कुल मेरे सामने आ गया था। मैं तो घबरा ही गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी स्कूल आ गई, उसके तब देखा भी नहीं। अरे यार पता नहीं क्या होगा तुम जैसी लड़कियों को। अगर वो जरा सा भी टच करता 2 थप्पड़ देती खींच के, फिर एकदम सही हो जाता। इनको कुछ नहीं बोलती हो तो लगता है पट जाएगी। आज नहीं तो कल और ट्राई मारते रहते हैं। चल आज छुट्टी में तुझे दिखाती हूँ कि ऐसे लड़कों से कैसे बात की जाती है। वो देख तेरे भौजाई के साथ सहेली साहिबा भी आ रही है। आज तो बात हो ही जाएगी।
काहे फर्जी प्ले पड़े हो बे? तुमसे कितनी बार कहें, तुमसे लौंडिया नहीं पड़ेगी, तुमको देखना है। अभी दिखा दो। एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, प्रॉब्लम क्या है? छेड़ता है तू इसको? किसी को भी छेड़ देगा? तेरी बाप की प्रॉपर्टी है क्या? लड़कोंबाजी करने के अलावा कोई काम भी है? लंगूर जैसी तो शक्ल है तेरी, लंगूर भी तुझसे अच्छा होगा। बोलती क्यों बंद हो गई? अब क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। अभी इसी सड़क पे इतना मारूंगी ना कि चलने फिरने के लायक नहीं रहोगे। इसके तरफ या इसके आस भी दोबारा दिखे ना तो चल यहाँ निकल यहाँ से, नहीं तो दूंगी खींच के। अरबी का नजारा आपके सामने। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। होश उड़ा देता है। अबे हमें तो लगा कि वो और भी ले गए और तब भी ले। अगर लौंडिया तुम्हें मारती ना तो हमें से कोई बचाता भी नहीं। और अगली बार साली सारा साथ में हो ना तो शक्ल लेके छिप जाना, समझे? तू रुक भाई, अब मैं यार ही कुछ सकता है। हेलो राज। हाँ राज, मोहन। राज पर बेइज्जती हो गई यार। क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? एक लड़की है जो तू अब बहुत बेइज्जती हो गया यार। क्या बेइज्जती होगी बताओ। अब तू भी कुछ कर सकता है। एक लड़की है जो तू उसको मेरे लिए पटाएगा। ठीक है भाई, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, फिर लड़की क्या चीज है? अगले सीन में आप देखिएगा बच्ची घर पहुंच गई है और घर का सीन आपके सामने। बेटा वो जो सलमान खान की नई मूवी लगी है ना भारत, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। और तुम्हारी मम्मी कब से जिद कर रही थी तो वही दिखलाने जा रहे हैं। और शाम को ऑफिशियल मीटिंग के कारण हम लोग लेट से आएंगे। अरे सलमान खान की फिल्म, वो तो मुझे भी देखनी थी। बेटा जिद नहीं कर। मम्मी मैं भी जाऊंगी। बेटा अभी तुम स्कूल से आई हो ना, वैसे भी तुम्हारे स्कूल और ट्यूशन के चलते हम कहीं जा नहीं पाते हैं, इसलिए बेटा तुम घर पर रहो, हम लोग आ रहे हैं। बाय बेटा। आप देखिएगा बच्ची घर पर अकेली है, बोर हो रही है और इसी बीच चाचा की एंट्री। चाचा काफी मजाकिया है और अब चाचा और बच्ची के बीच की बातें। क्या होगा चाचा? मम्मी पापा चले गए हमको अकेले घर पे छोड़ के सलमान खान की फिल्म देखने के लिए। अरे तो क्या होगा, सलमान खान की फिल्म नहीं तो सॉन्ग और डांस ही सही। हाँ हाँ चाचा, आप तो बिल्कुल सलमान खान के जैसे ही डांस करते, डांस हो जाए। और झूमर की रात है, और झूमर की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। अरे तुम? हाँ भैया आज फ्री था तो सोचा आ जाओ। चलो अच्छा किया, तुम जाए चाय बना ले आओ। बेटी तुम्हारा एग्जाम है तो तुम जाओ पढ़ने। फिर से बच्ची और उसके दोस्त के बीच की बातचीत। अच्छा यार, एक बात बता, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से है? तू किसी से भी इस तरह की बात कर लेती है? आखिर तुझे सिखाता कौन है ये सब? मेरे पापा। और कौन? वो मुझे हमेशा बताते हैं, तुझे जो करना है कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना है कर। बस इसी तरह। पहले मेरे भी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, पता नहीं अब क्या हो गया। अब तो एक एक हफ्ते मुझसे बात नहीं करते। ओह मेरा बैग टूट गया, अब मैं क्या करूं? मैं हेल्प यू। लीजिए, अब आपका बैग ठीक हो गया। थैंक्स। बाय द वे मेरा नाम राज, और आपका? अगर आपको नाम नहीं बताना तो कोई बात नहीं। पूजा।
यहाँ तक तो आपने देखा। अब अगला दिन स्कूल की छुट्टी होती है, दोनों बच्चियां घर वापस आ रही हैं और रास्ते में राज की एंट्री। एक्सक्यूज मी पूजा, मुझे आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बात करने की? पूजा, क्या तुम्हें बात करनी है? नहीं, चलो फुटो यहाँ से। क्या लड़की है बे यार। तो पूजा के फ्रेंड जैसी, क्या मैं सही हूँ? नेक्स्ट सीन में आप देखिएगा, सारे लफंगे साथ में बैठे हुए हैं और सीन आपके सामने। तुम साले महीने भर से एक लौंडे ने फंसा पाते, अपने भाई के देखो एक हफ्ते में काम दिखा दिया। अबे कहाँ से पहुंची तेरी लव स्टोरी? अबे साली की दोस्त बहुत। अबे सुन ना, वो इतनी सीधी भी नहीं है, उसके फ्रेंड को मेरे लिए बढ़ा देना। अबे ज्यादा बकेती ना झाड़ो, औकात में रखकर बात करो। पहली बात तो वो तुमसे पटेगी नहीं, ज्यादा परेशान करो ना तो बीच रास्ते में वो तुमको चप्पल चप्पल मारेगी। अबे ऐसा ना हो कि 2-4 ग्रुप जल्दी ऊपर चल जाए। क्या कर रहा है? जल्दी करना। अबे भात दाल चोखा बना के रखा है क्या? माँ दीदी और खा लिया, थोड़ा ठहर भाई। तू रुक भाई, अब मेरा यार कर सकता है। चाहे भाई डांस हो जाए, तुम लोग को भाव मिल जाएगी और हमको सपना गिराने रजवा तो मुमकिन ना मिल लगा कुछ। होश उड़ा देता है मेरा, नूरे मुजस्सिम ऐसा तेरा। तेरा सरापा ऐसा है हमदम, तेरा सरापा ऐसा है हमदम, कैसे चमके धूप में शबनम। जब से हम हैं तुमसे मिले कसम, हम रहे नहीं हम। किया किया क्या किया, क्या किया रे सनम, किया किया क्या किया, क्या किया रे। सीन पूजा की छुट्टी हो गई है और रास्ते में पूजा और राज की मुलाकात और बातचीत। हेलो पूजा, मैं आपके लिए ये लाया हूँ। ये क्या है? मैं जो आपको कहना चाहता था मैंने इसमें लिख दिया। इस प्रोजेक्ट का डील फाइनल कर दो। मनिका, तुम जितनी जल्दी हो सके इसकी डिटेल्स निकालो और इसे एडवांस भेज दो। ओके सर। देवो, पूजा के साथ ये लड़का कौन है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम एक काम करो तो पता करो वो कौन है, लेकिन इस बात को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कौन है। अब अगले सीन में आप देखिएगा, पूजा राज की याद में खो गई है और सीन आपके सामने। तेरे बिन जियो नहीं लगता, मैं मर गई।
हाय भैया, आप लोग बैठिए, मैं पूजा से मिलकर आता हूँ। पूजा, पूजा। अच्छा अच्छा। क्या बात है बेटी, आजकल बहुत बदले बदले से लग रही हो। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया किसी लड़के से? मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर लाइफ में कोई भी परेशानी या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे शेयर जरूर करोगे। प्रॉमिस। अगला सीन पूजा घर पर है और चाचा की एंट्री। पूजा, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चाचा, क्या बात करनी है? बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लाइफ में कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे शेयर जरूर करोगी। क्या शेयर करना है चाचा? तुम आज कहीं तुम घूमने गई थी? नहीं तो। तुम गए थे, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम राज है। तुम अक्सर इससे बातें करती रहती हो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ना ही गुस्सा करूंगा। तुम जो कर रही हो कोई भी गलत नहीं कर रही हो। गलत केवल इतना है कि तुम सबसे छुपकर कर रही हो और इस बात का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। लेकिन चाचा, राज वैसा लड़का नहीं है। अच्छा, क्या जानती है उसके बारे में? सर, चाचा, राज के पापा सरकारी नौकरी करते हैं और राज के चाचा पुलिस अफसर हैं और राज IIT की तैयारी कर रहा है और वो शायद गोमती नगर में रहता है। वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, कोई IIT की तैयारी नहीं कर रहा। उसका बाप एक नंबर का शराबी, एक झोपड़पट्टी में रहता है वो। क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ मुझको? चाचा पे चाचा विश्वास नहीं है क्या? देखो अब प्रूफ लाओ तो। इसमें पूजा वही सब वीडियो देख रही है जो कि सारे लफंग के साथ में बैठकर बातें किया करते थे। सॉरी चाचा। कोई बात नहीं, रो मत। अब मुझसे वादा करो कि तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। अगला सीन, पूजा पूरी परेशान है और उदास चेहरे के साथ स्कूल जा रही है और उसी बीच रास्ते में राज की एंट्री। सीना पूजा, क्या हुआ? बता तो दो क्या हुआ जो तुम आज मुझसे बात नहीं कर रही हो। आप झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो। हमको आपसे बात नहीं करना। मतलब किसी ने तुमको कुछ कहा और तुमने विश्वास कर लिया, यही अपना प्यार? तुम बस मुझे 10 मिनट दो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो करना। ठीक है। सड़क पे बात करने से अच्छा है हम लोग साइड में बात करें। इसी बीच इंक्वायरी होती है और पुलिस की जीप आ जाती है। नजारा आपके सामने। हमने देखा पुलिस आई और पूजा को पकड़ कर ले गई और राज भाग गया। अब नेक्स्ट सीन में आप देखिएगा पुलिस स्टेशन का सीन। नजारा आपके सामने। क्या मैं नहीं? हाँ, अभी ढंग से बड़ी भी नहीं हो, समझी? क्या बस ऐसे ही झाड़ों के पीछे क्या भजन कीर्तन कर रही थी? तुम जैसे लड़कियों की वजह से लोग पैदा करने से पहले लड़कियों को मार देते हैं। पूजा, कौन है? जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। सीन में आप देखिएगा पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं और पूजा के पापा बैठे हुए हैं। सीन आपके सामने। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। बच्ची पर ध्यान नहीं देती है? माँ क्या करती है? हाउस वाइफ है। प्रॉपर्टी के साथ साथ बच्ची पर ध्यान दिया करिए। यहाँ साइन करिए, ले जाइए इसे।
अगले सीन में आप देखिएगा घर का नजारा आपके सामने। माँ परेशान है और चाचा भी घर पर आए हुए हैं और पिता गुस्से में बेटी को लेकर आ रहे हैं। नजारा आपके सामने। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, क्यों मारने जा रहे हैं आप इसे? क्यों मारने जा रहे हैं आप इसे? ये बात इसी से पूछो। मैं इसे बच्ची समझ रहा था और ये पूरी दुनिया में मेरे नाक कटा रही है। आज मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा सिर्फ इसकी वजह। इसकी वजह से? क्यों उसकी वजह से? बच्ची है, ना समझे वो। तुम जिसे ना समझ कह रहे हो, वो गार्डन में जाकर और लड़की के साथ मेरे नाक कटा रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आपको याद है लास्ट टाइम इसने अपने से प्यार से बातें की थी? क्या आपको याद है लास्ट टाइम इसे अपने कब गले लगाया था? नहीं आ रहा ना? तो मुझे याद है जब ये पैदा होती है बहुत खुश थे, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, आप दोनों का बीच का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। दिन भर सीने से लगाए घूमते थे, इसके बिना कहीं आते जाते भी नहीं थे। थोड़ी और क्या बड़ी आपने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और वो डिस्टेंस आज इतना बढ़ गया कि अपने दिल की बात भी आपसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है। इस बेटी को ढंग से बड़े करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। इसे कभी घर काम नौकरी घर काम के अलावा कुछ सिखाया है? कभी ले गए घर के बाहर? कभी बाहर की दुनिया दिखाने की कोशिश भी की है कि बाहर में कैसे लोग भेड़िए घूमते रहते हैं जो माँ बाप से पहले पता लगाते हैं कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है? कभी बताया है प्यार क्या होता है? कभी बताया इसे लड़का लड़का के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है? ये सारी बातें आपने जब इसे बताए होती तो अपनी जिंदगी के हर किताब के पन्ने आपसे ये कलेक्शन कराती है और सही गलत की समझ इसमें आती है। मुझे समझ में नहीं आता एक बाप उस वक्त अपनी बेटी से दूरियां की बना लेता है जब उसे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए इसकी आंखों में और आज बोलिए कौन गलत है कौन सही? बेटी, आज से तेरा बाप तेरे हर कदम में तेरे साथ है। तुझे जो करना है वो तू कर, पर मुझसे वादा कर कि तू अपने दिल की बात मुझे बिना डरे बिना झिझक के बताएगी और हम दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इस नाटक के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि पापा होते तो है बहुत अच्छे, पर थोड़े से बदल जाइए प्लीज पापा, प्लीज। थैंक यू। बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं जिन्होंने एक ड्रामा जो कि बहुत ही कंटेम्पररी है, आज के समय के अनुसार है, समसामयिक है, पेश किए हैं, जहां पर ये बात बतलाई गई है कि माँ पिताजी और संतान के बीच में जो मानसिक दूरी हो जाती है एक समय के बाद, उसके कारण बच्चे या बच्ची, बेटा या बेटी जो भी है, वो बहुत सारे बात माँ पिताजी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। एडोलेसेंस पीरियड में जो बात कम से कम माँ से शेयर होनी चाहिए। एक माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत एक अलग रिश्ता होता है, एक करीबी रिश्ता होता है, जहां पर पिताजी के साथ भले वो बेटी उतना शेयर नहीं कर पाए, लेकिन माँ के साथ वो शेयरिंग होता है, होना चाहिए। बेटी अपनी मन की बात, उसके आसपास, उसके साथ, उसके जिंदगी में क्या क्या बातें हो रही है, क्या क्या घटनाएं घट रही है, वो माँ के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। और माँ को भी खुल के सामने आना चाहिए उस बात को। बेटी अगर कोई ऐसी बात कह दे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, या मैं किसी रिलेशनशिप में मैं हूँ या होने वाली हूँ, तो माँ को उसको बहुत ही मैच्योर्ड वे में हैंडल करना चाहिए और बेटी से अच्छी तरह जानकारी लेनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है। बेटे के साथ उसी तरह से होना चाहिए। और अगर माँ को लगे कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो माँ को एक दोस्त की तरह, एक गार्डियन की तरह उसको समझाना चाहिए, क्योंकि डांट टपट के आजकल के जमाने में कुछ होने वाले नहीं है। आप अगर डांटेंगे, आप अगर धमकाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो चुपके चुपके वो बात करेंगे जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
जो बात यहाँ पर हुआ है, जो इस नाटक के सामने, जो नाटक के डायरेक्टर है मोस्ट प्रोबेबली वो राजन ही होंगे जिन्होंने रखा है सबके सामने, तो ये सीख मिलनी चाहिए कि देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। हम सभी माँ पिताजी है, पिताजी है, हम हमारे घर में मेरी बेटी जो आज 19 साल की उम्र की है, वो अपनी बात अपने माँ के साथ, मेरे साथ उतना शेयर नहीं करती है, लेकिन माँ के साथ शेयर करती है, जो कि बात हमको पता चलता है। तो आज के ज़माने में वो लोग हम बहुत ज़्यादा समझदार है और वो लोग का ज़िंदगी कुछ अलग है, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों से वो घिरे हुए। सबसे बड़ा चीज़ है तो मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन जो है जिसके जरिए वो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग बातें हैं, इसके साथ उनके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत तरह के मैसेजेस वगैरह ये सब आते रहते हैं। तो माँ के साथ वो बात वो हमेशा शेयर करती है, जो कि हमको पता चलता है। तो माँ उसको अपना सुझाव देती है कि इस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो भी कभी कभी गलती कर देती है, माँ उसको संभालती है, बाद में वो मेरे को बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है। ये सही बात है, मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये होनी चाहिए। माँ लोग को ज्यादा जागरूक और मैच्योरिटी दिखाना चाहिए अपने, स्पेशली अपनी बेटी के साथ जीवन में क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में। इतना ही कहकर मैं इस्लाम सर को दे रहा हूँ, वो और भी बातें कुछ इसमें बोलेंगे। थैंक यू सर। सर ने बहुत कुछ कह दिया। उसके अलावा मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जिस माशरे में, जिस परिवेश में हम लोग पले हैं, जिस टाइम हम लोग बच्चे थे उस टाइम डांट फटकार मिलता था, हम लोग मार खा के भी बड़े हुए हैं, टीचर्स भी कई छड़ी लगाते थे, जिस्म पे दाग हो जाता था, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग टीचर्स को भी बहुत ही एक दोस्त की तरह, एक टीचर के नहीं एक दोस्त की तरह भी बच्चों को समझाना पड़ता है, परामर्श देना पड़ता है, क्योंकि वो घर से मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, घर से सब तनाव से आते हैं, पता नहीं घर का क्या माहौल होता है, तो ऐसा सा प्रॉब्लम हो जो मैं बता नहीं पाऊँगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गार्जियन की कि वो अक्सर बच्चों को कम से कम मारे नहीं, कुछ हद तक डांटे। अगर डांटते भी, अगर मार भी देते हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है, अगर मार भी देते हैं, होता है हमारे अंदर ब्लड है, हमारे अंदर खून है, खौलता ही है, कुछ ऐसी गलतियां कर देती है बच्चे या बच्चे, तो हम डांट भी देते हैं तो कम से कम उसे फिर परामर्श देनी चाहिए, समझाना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए कि देखो ये गलत है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहा है बॉडी में, जिसके वजह कर वो कुछ गलती कर बैठते हैं और उसे गलत और सही के बीच में पहचान नहीं होती है। आप एक्सपीरियंस हैं, बुजुर्ग हैं, आप भली भांति समझा सकते हैं। अगर दिन भर में अगर आप मारे हैं, उसको डांटे हैं, तो शाम में लेके बैठिए, कूल माइंड होकर के ठंडे दिमाग से समझाइए कि देखिए ये तुम्हारी गलती थी, वो सही है, अगर चाहता है वो सही है तो साथ दीजिए, अगर लगता है गलत है तो वो समझाइएगा, कुछ लॉजिक दे के, कुछ वजूहात, कुछ कारण दे के समझाइए कि ये गलत है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात अभी आज के दौर में जो है, पहले होता था कि टीवी कल्पित होता था कि टीवी सब कुछ बिगाड़ देती है। अब टीवी कहाँ चली गई, टीवी तो डब्बा हो गया, एडवर्टीजमेंट ने उसको डब्बा बना दिया है, लेकिन टीवी सब कुछ अब मोबाइल में समा गया है। मोबाइल का यूज़, खासकर स्मार्टफोन का यूज़ सही से हो, क्योंकि बहुत बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि कम से कम मोबाइल का, स्मार्टफोन का यूज़ समझना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं, बच्चे लोग जो हैं, वो माँ बाप को ही उल्टा समझा देते हैं कि ये ऐसा माँ बाप समझ जाते हैं। ये दौर आ गया है कि माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि मोबाइल का यूज कैसे होता है, मोबाइल में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे गेम होते हैं, जिसके वजह का भी, जैसे पबजी चला हुआ है, ठीक है, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। पहले ब्लू व्हेल था, 1 साल पहले, 2 साल पहले ब्लू व्हेल था, जिसके वजह कर बच्चे शिकार हो जाते हैं, उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया जाता है। में अपने सुपरविजन में बच्चों को हमेशा देखते रहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप कभी मत बोलिए बच्चों को कि मुझे मोबाइल की ABCD नहीं पता है, तू ही बता, तू भी ये कर। आप अगर नहीं भी जानते, अगर आपसे नहीं होता है, तो आप कम से कम बोलिए, आप नाटक कीजिए, कम से कम हमको सब आता है,
सब कुछ तुझे नहीं बताऊँ। इससे क्या है, खौफ रहेगा, डर रहेगा, बच्चे भटकेंगे नहीं, कम से कम डर रहेगा, कहीं ना कहीं मम्मी पापा जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और अभी ये दौर हो गया, इसलिए मैं बच्चों को भी समझाता हूँ कि वो दौर आ गया, कम से कम आप पढ़ो लिखो, आप टेक्नोलॉजी तकनीक से भी कम से कम जुड़े रहो, ताकि आने वाला दौर जब आप माँ बाप बन पाएँ तो आपके बच्चे आपको आपकी आंखों में धूल नहीं छोड़े। इसलिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बच्चों को परामर्श करते रहिए, हर दिन जब स्कूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रास्ते में क्या हुआ, 1 मिनट कम से कम समय निकालिए, पूछिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोलिए कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। उम्र में फ़र्क हो सकता है, हम पैदा किए हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है कि तुम्हारे दोस्त है, तुम बोलो, हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि माँ बाप ही इस वर्ल्ड में अगर सबसे, इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा दोस्त किसी का हो सकता है वो तो माता पिता हो सकता है, और कोई नहीं। थैंक यू। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, अगर दम है तो ऐसे जियो कि पहचान बन जाए। Now I will request to Mr. Amit and Miss Poonam, who are the bachelor student of the English world, please come on the stage and manage the program. थैंक यू। बहुत देर से आप लोगों ने सीरियसली सुना होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज हुए, अब थोड़ा सा मस्ती किया जाए। पता कम है पड़ताल ज्यादा है, पता कम है पड़ताल ज्यादा है, सवाल कम है जवाब ज्यादा है। इन व्यक्ति को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए, ये व्यक्ति कभी कम बलवान ज्यादा है। Okay, get ready all of you. हम अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स को, अपने टॉपर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ बुलाना चाहते हैं। सर का स्वागत तालियों के साथ किया जाए। जितने भी प्रोग्राम्स एजुकेशन को लेकर होते हैं, मकसद एक ही होता है, टॉपर्स टॉपर्स एंड सिर्फ टॉपर्स। किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर रिस्पेक्ट बढ़ती है, डांस इज द पार्ट ऑफ दैट, सिंगिंग इज द पार्ट ऑफ दैट, बट बेस्ट पार्ट इज द एजुकेशन। एम आई राइट? तो मुझे लगता है उन्हें वे सम्मान के पात्र हैं और उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम हमारे यहाँ हर साल होते हैं, उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिस्पेक्टफुली, ऑनरेबल और जितना भी मेहनत हो सके मेहनत के साथ प्रूव किया कि रियली सर हम मेहनत कर सकते हैं और अपना जगह तैयार कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को उन बच्चों को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा आपके सामने, जो 10 में तो 40%, 45%, 50% मार्क्स लाए थे बिफोर 2 years, बट एक अच्छे मेहनत के बाद, काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद उनका परसेंटेज बिल्कुल डबल हो गया, यानी 45 से सीधा 80, 82% एंड 83%। तो उन बच्चों का वेलकम एकदम रिस्पेक्ट के साथ, एक अच्छे क्लैपिंग के साथ होना चाहिए। मैं नेम्स बोलता हूं, नाउ स्टार्ट टू क्लैप फॉर देम ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ नंबर 1 अनु आकांक्षा कुमारी, class 12, 82% this year she got. Please come with the guardian. Son, come with the guardians. Preeti Kumari Paswan, 82.6%, class 12. Please Babu come on the stage. मनीषा कुमारी, क्लास 12, 71%। मैं जिन लोगों का भी नेम ले रहा हूं वो सभी बच्चे अपने अपने गार्जियन के साथ स्टेज पे आएंगे। सोनम कुमारी, 73%, क्लास 12। निखत परवीन, 72%, क्लास 12। अब इन सभी बच्चों को
गार्जियंस के साथ मैं अवार्ड देने के लिए हमारे ऑनरेबल टीचर प्रीति कुमारी प्लीज कम। नेक्स्ट आकांक्षा कुमारी। संकेत पंडित। मनीषा कुमारी। निखत परवीन। सोनम कुमारी। एक्चुअली अभी 50-50 हुआ है, यानी 50 बच्चों को अवार्ड मिल चुका है। थोड़ा प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे का अवार्ड फंक्शन चलेगा। बट इन बच्चों के लिए बस मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। बोलूं तो हर जुबान पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर जुबान पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम तेरी दुनिया की सलाम होगा, हर मुश्किल का सामना करना तू डट कर, तू देखना समय तेरा भी गुलाम होगा। और मैं चाहूंगा संकेत 2 शब्द बोले इन सभी टॉपर्स बच्चों के लिए और जिनको भी मैंने, बिकॉज आप डिजर्व करते हो। फर्स्ट संकेत एंड आफ्टरवर्ड्स एज यू विश। Congratulations to all my classmates who are standing on this stage. मैं बोलना चाहूँगा, मैं शायद आप लोग सभी नहीं जानते होंगे, मैं सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ इंग्लिश वर्ल्ड का स्टूडेंट नहीं हूँ। राजन सर पढ़ाना स्टार्ट किए थे द जीनियस इंग्लिश एजुकेशन सेंटर, देन आफ्टर द KSP इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एंड एट लास्ट द इंग्लिश वर्ल्ड। मैं राजन सर के पास ज्वाइन किया था क्लास 4 में।
क्लास 4 में मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, बट मैं बुक रीडिंग भी टूटा फूटा करता था। सर बोलते थे ये रीडिंग करने का तरीका नहीं है, बस मैं हिंदी बोलता था। उस टाइम मुझे बुक रीडिंग भी नहीं करनी आती थी, पर मैं सर के पास पढ़ा, हर एक स्पोकन क्लास किया, सारा तरह का क्लास किया, और राजन सर के वजह से टुडे आई कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड इन एनी फ्रंट ऑफ एनीवन। आई डोंट फियर ऑफ एनीवन। I able to stand anywhere and able to say anything, बस राजन सर के वजह से। एंड थैंक यू, मुझे इतना ही कहना था, और मैं चाहूँगा कि मेरे क्लासमेट्स आगे कुछ बोले। थैंक यू सो मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल माई क्लासमेट्स। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, टुडे आई एम सो कैपेबल, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ राजन सर। And I would like to special thanks to my mother because she is my first teacher in my life. जैसे एक बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए उसके बेस को मजबूत किया जाता है, उसी तरह मेरी माँ ने मेरे बेस को मजबूत किया है। So please clap for my mother. Thanks for all your giving support and efforts. Thank you so much.